Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing great. The topic for this video is errors that do affect the trial balance and suspense account. So I've already shared a presentation with you guys which is about errors that do not have an effect on the trial balance. So this video is going to be exclusively for errors that do have an effect on the trial balance and obviously the suspense account. Okay, let's first of all discuss what is a suspense account, why is it created, and why is it required, and what are errors that do affect trial balance. So, due to some errors, the total on the debit side does not equal the total on the credit side. So, obviously, there are errors which result in your debit side in your trial balance not equaling your credit side in your trial balance, right? So, obviously, that happens when you make an error. अगर आपने एरर नहीं किया होगा, सब कुछ ठीक किया होगा, तो ऑब्वियसली योर ट्रायल बैलेंस इज गोइंग टू बैलेंस, राइट? So your trial balance does not balance because you have made some errors, and since because of these errors your trial balance is not balancing, that is why a suspense account is involved, number one. Number two, that is why they are called errors that do have an effect on the trial balance. So obviously previously when we discussed errors not affecting trial balance, उन एरर्स की वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई भी अफेक्ट नहीं आ रहा था. दैट इज़ वाई वी यूज टू कॉल देम एरर्स दैट डू नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस. ऑलराइट, सो सस्पेंस अकाउंट इज देन यूज्ड to temporarily balance a trial balance in which the total amount on the debit side does not equal the total amount on the credit side. So when your trial balance does not balance, then you enter that amount into the suspense account to find out the errors and correct the errors. All right. Okay, what are some steps to be taken when the trial balance does not balance? What do you do when your trial balance totals on the debit side and the credit side, they do not equal each other? What do you do? So first of all, you find out the difference between obviously the total of the debit side and the credit side. So let's say आपकी debit side का total आ रहा है 800 and आपकी credit side का total आ रहा है 900. So obviously there is a difference, right? So you find the difference. Now obviously the difference between these two amounts is ₹100, राइट? सो हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया है कि दोनों साइड्स के दरमियान डिफरेंस कितना है. नाउ एज द रीज़न फॉर द डिफरेंस इज अननोन और नॉट नोन, एंटर दिस अमाउंट ऑफ द डिफरेंस इन द सस्पेंस अकाउंट. तो जब फिलहाल हमें नहीं पता कि ये ₹100 का डिफरेंस क्यों आया है हमारे ट्रायल बैलेंस में. सो राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू एंटर दिस अमाउंट इन द सस्पेंस अकाउंट. तो फिर बाद में जब हमें एरर्स का पता लग जाएगा, हम फाइंड कर लेंगे एरर्स को, हम उनको करेक्ट करेंगे एंड देन वील टेक केयर ऑफ दिस डिफरेंस. सो राइट नाउ आई जस्ट हैव टू एंटर दिस अमाउंट इनटू द सस्पेंस अकाउंट सो दैट माय ट्रायल बैलेंस टेम्पोररीली बैलेंसेस. सो अब ₹100 का डिफरेंस है तो मुझे 100 यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे ऑन द डेबिट साइड सो दैट यहाँ का टोटल भी 900 हो जाए. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, then what you do is you find out the reasons for difference, obviously the errors, but in your case obviously आपको errors को ढूंढना नहीं होगा, आपको questions में errors already given होंगे, तो आपको उन errors को सिर्फ correct करना होगा by making journal entries. ठीक है, तो आपको errors ढूंढने की ज़रूरत, you will not have to find out the errors. So आपको सिर्फ errors को correct करना होगा and in some questions you will also need to make the suspense account. यानी आपने once you've corrected the errors through journal entries, you will also need to make the suspense account. जो T account बनता है suspense account, वो भी आपको शायद बनाना पड़ सकता है. So these are the steps that you take when you're attempting a question on suspense account. All right. Now possible errors that result in the trial balance not balancing. ये possible errors हैं, इनमें से सब भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है. ठीक है. The first is single sided entry. Single sided entry का मतलब है obviously we are following the double entry concept. So for every debit entry that we make, there is a corresponding credit entry and vice versa, right? So for every credit entry there is a corresponding debit entry. But अगर कभी गलती से आप सिर्फ एक एंट्री कर दें, सिंगल एंट्री, दूसरी एंट्री आपने नहीं की, यानी डेबिट साइड पे आपने 500 रिकॉर्ड कर लिया बट क्रेडिट पे 500 रिकॉर्ड नहीं किया किसी भी अकाउंट में, so obviously your trial balance is not going to balance, right? Another possibility could be debit and credit entries have been made but with different values. So obviously आपने एक ट्रांजेक्शन किया है जिसका अमाउंट है 800, तो 800 आपने डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड करना है, 800 आपने क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड करना है किसी ना किसी अकाउंट में.
अब गलती से आप एक अकाउंट में तो 800 रिकॉर्ड कर देते हैं डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे गलती से 800 के बजाय यू एंटर 900, सो व्हाट is going to happen? Your trial balance is not going to balance, right? Another possibility is two entries have been made but on the same side. तो एक डेबिट एंट्री के लिए एक क्रेडिट एंट्री होना ज़रूरी है, बट अगर आपने गलती से दोनों एंट्रीज या दोनों इस ट्रांजेक्शन के दोनों अफेक्ट्स एक ही साइड पे शो कर दिए, तो वंस अगेन योर ट्रायल बैलेंस इज नॉट गोइंग टू बैलेंस. फॉर एग्जाम्पल आपने एक डेबिट एंट्री की, दूसरा अकाउंट भी गलती से डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग, so once again your trial balance is not going to balance. Another possibility is opening balance has not been brought down, यानी किसी अकाउंट में आपके पास ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है बट आपने उसको टोटल में इंक्लूड नहीं किया, सो वंस अगेन योर टोटल इज गोइंग टू बी रॉन्ग, राइट, इन दैट पर्टिकुलर टी अकाउंट. तो वंस अगेन योर ट्रायल बैलेंस इज नॉट गोइंग टू बैलेंस. एंड इनकरेक्ट एडिशन इन एनी ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंट्स, किसी भी टी अकाउंट में या किसी जगह जहां आप टोटल कर रहे हैं वहाँ पर आपने कोई मिस्टेक कर दी है, तो वंस अगेन योर ट्रायल बैलेंस इज नॉट गोइंग टू बैलेंस. वाई? बिकॉज जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने वहाँ कैलकुलेट किया है दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर टी अकाउंट. तो बाकी सारे टी अकाउंट्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक टी अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर आपने गलत कैलकुलेट कर लिया, तो वंस अगेन योर ट्रायल बैलेंस इज नॉट गोइंग टू बैलेंस. Another possibility is extraction error. So when you are extracting the trial balance and अगर आप किसी एक स्पेसिफिक टी अकाउंट में गलत अमाउंट एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर ट्रायल बैलेंस. तो फॉर एग्जांपल आपने कैश का टी अकाउंट बनाया और उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा था 100, बट जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया तो वहाँ गलती से जल्दी में 1000 लिख दिया. सो दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर बैलेंसिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस. आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं करेगा. ऑलराइट, सो दीज आर the possibilities that could be there in the questions. Alright, now this is a question from the past papers and इसमें basically तीनों steps हम follow करेंगे. We are going to make a trial balance. वो balance नहीं करेगा तो फिर हम उस amount को suspense account में डालेंगे, फिर errors को correct करेंगे और फिर अपने suspense account को बनाकर देखेंगे कि whether we have done the correction in the right way or not. The following balances remained in the books of Fabio at 30th June 2016. He was aware that there was some bookkeeping errors and that the trial balance would not balance. So obviously in this question they know that your trial balance is not going to balance. ठीक है, you are required to complete the trial balance at 30th June, balancing the trial balance by the use of an appropriate account. So they know that the trial balance is not going to balance and they want you to enter that difference amount in an appropriate account. Now what is going to be that appropriate account? It is going to be the suspense account. ठीक है, so इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा? इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस. मोटर व्हीकल का बैलेंस गिवन था वो हमने एंटर कर दिया. सो जितने भी आपको बैलेंसेस गिवन है वो आप उनके रिस्पेक्टिव साइड्स पे एंटर कर देंगे. ऑब्वियसली यू हैव टू डू दिस करेक्टली, अदरवाइज ऑब्वियसली आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी गलत आएगा. सो यू शुड नो कि एसेट्स का बैलेंस किस तरफ आता है, लाइबिलिटीज़ का किस तरफ आता है, कैपिटल का किस तरफ आता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम का किस तरफ आता है. सो फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल एसेट है तो उसका डेबिट पे आ रहा है. ट्रेड पेबल्स इज़ अ लाइबिलिटी इसलिए उसका क्रेडिट पे आ रहा है. इन्वेंट्री इज़ वंस अगेन एन एसेट तो डेबिट पे आ रहा है. रेवेन्यू इनकम ऑब्वियसली क्रेडिट पे है. परचेजेज एसेट है तो डेबिट पे है. बैंक लोन इज़ अ लाइबिलिटी तो क्रेडिट. बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी क्रेडिट. ट्रेड रिसीवेबल एसेट डेबिट एंड कैपिटल ऑब्वियसली इज ऑलवेज ऑन द क्रेडिट साइड. सो वंस यू हैव डन दिस करेक्टली, जब यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे तो यू टोटल बोथ द साइड्स. So when you total both the sides, you get to know that there is a difference between the two sides and that difference is 1130. और वो जो 1130 है that is basically a shortage on the debit side, right? So difference है 1130 का and that is a shortage on the debit side. So you enter 1130 on the debit side to temporarily balance the trial balance. Now after entering this 1130, your debit side is going to be equal to your credit side. तो रिक्वायरमेंट ये आपने फुलफिल कर दिया है यहाँ पर. ठीक है, यू मूव ऑन टू रिक्वायरमेंट बी. ऑन इंस्पेक्शन ऑफ हिज बुक्स फैबियो लोकेटेड द फॉलोइंग एरर्स. तो दो एरर्स मिले हैं उनको एंड वो दोनों आपको गिवन है. तो ये दोनों एरर्स अब आपने क्या करने हैं? यू नीड टू मेक जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट दीज एरर्स एंड इन एरर्स को करेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अ सेल ऑफ गुड्स 850
had been correctly recorded in the account of a credit customer but had been recorded in the sales account as 580. So जब आप किसी को क्रेडिट पर सेल करते हैं तो obviously you make 2 T accounts, right? So one is your sales T account and the other one is going to be the T account for your customer. Now सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री होनी थी और कस्टमर के अकाउंट में ऑब्वियसली डेबिट एंट्री होनी थी. किया क्या है हमने, इट वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ अ क्रेडिट कस्टमर. सो ये एंट्री हमने ठीक की थी, बट हैड बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट एज 580. सो ये जो 850 एंटर करना था ये हमने गलती से 580 के तौर पे एंटर कर दिया. नाउ यू नीड टू करेक्ट दिस एरर. ये मैंने टी अकाउंट इसलिए बनाया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द एरर इन अ बेटर वे. आप ये टी अकाउंट किसी भी एरर को करेक्ट करने के लिए बनाना चाहते हैं तो यू कैन डू दिस इन द रफ वर्क. ठीक है, रफ वर्क में आप ये कर सकते हैं. सो सिंस दिस कस्टमर्स अकाउंट इज़ करेक्ट, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से. इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ सेल्स के अकाउंट में मिस्टेक है, वो हमें करेक्ट करना है. सो क्रेडिट साइड पे 850 के बजाय हमने गलती से 580 रिकॉर्ड कर लिया था. तो ऑब्वियसली हमने अमाउंट कम रिकॉर्ड किया है, राइट? कितना कम रिकॉर्ड किया है वो हमें पता लग जाएगा जब हम इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. तो इन दोनों का डिफरेंस है 270. तो इसका मतलब ये होगा कि सेल्स में हमने क्रेडिट करना था 850 बट गलती से 580 एंटर किया, विच इज़ रॉन्ग. नाउ यू नीड टू रिकॉर्ड 270 मोर इन द सेल्स अकाउंट, राइट? सो ये 270 आपने सेल्स में क्रेडिट करना है. तो ऑब्वियसली जब आप सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी अ डेबिट एंट्री एज वेल फॉर दिस क्रेडिट एंट्री, राइट? इस क्रेडिट एंट्री के लिए कोई डेबिट एंट्री भी तो होगी सिंस वी आर फॉलोइंग द डबल एंट्री कॉन्सेप्ट. सो इसकी डेबिट एंट्री कहाँ चली जाएगी? इसकी डेबिट एंट्री चली जाएगी सस्पेंस अकाउंट में, सिंस देर इज़ नो अदर अकाउंट इन्वॉल्व. सो करेक्टिंग एंट्री इसकी क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट. अमाउंट होगा 270. दिस इज गोइंग टू बी हाउ योर फर्स्ट एरर इज करेक्टेड. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेकेंड एरर. Now in the second error, a purchase of goods 700 had been correctly entered in the account of a credit supplier but had been credited to the purchases account. So when you buy goods from a supplier, तो आपको एक तो परचेजेस का अकाउंट बनाना है, दूसरा आपको अपने सप्लायर का अकाउंट बनाना है, राइट? 700 की परचेजेस की हैं तो 700 से परचेजेस डेबिट होना था एंड सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट होना था. इट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ अ क्रेडिट सप्लायर. यानी ये एंट्री हमने बिल्कुल ठीक की थी, देयर वाज नो मिस्टेक इन दिस, बट हैड बीन क्रेडिटेड टू द परचेजेस अकाउंट. यानी परचेजेस अकाउंट में ये 700 डेबिट करने के बजाय हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था, विच वॉज ऑब्वियसली रॉन्ग. तो वंस अगेन इस सप्लायर के अकाउंट में देयर इज नो मिस्टेक, सो वील रिमूव दिस. ठीक है, नाउ ये जो हमने एंट्री की है यहाँ पर, दिस इज रॉन्ग, राइट? सो इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस we'll need to post a debit entry with double the amount. इसको करेक्ट करने के लिए बाय बिकॉज ये हमने क्या किया है, ये हमने अमाउंट रिवर्स कर दिया था. एंड यू ऑलरेडी नो कि जब भी हम अमाउंट रिवर्स कर देते हैं तो द करेक्टिंग एंट्री इज ऑलवेज विद डबल द अमाउंट, राइट? सो सिमिलर इज गोइंग टू बी द केस हियर. अब 1400 से मैं परचेजेस को डेबिट कर रहा हूँ तो वंस अगेन क्रेडिट एंट्री किस अकाउंट में डालनी पड़ेगी? सस्पेंस अकाउंट. वाई? बिकॉज देयर इज नो अदर अकाउंट इन्वॉल्व. सो द क्रेडिट एंट्री फॉर दिस, द करेक्ट एंट्री फॉर दिस एरर इज गोइंग टू बी दिस: परचेजेस डेबिट एंड सस्पेंस क्रेडिट. ठीक है जी, तो दोनों एरर्स हमने करेक्ट कर दिए. नाउ इस क्वेश्चन में देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग अ टी अकाउंट, राइट? टी अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सस्पेंस अकाउंट आपको नहीं बनाने को कहा था. बट आई वुड स्टिल लाइक टू मेक द सस्पेंस अकाउंट सो दैट यू नो कि कैसे एंट्री हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. ओके, दिस वॉज द ट्रायल बैलेंस दैट वी मेड. ठीक है, हमने जब इसमें कैलकुलेट किया था तो हमारे जो डिफरेंस था ट्रायल बैलेंस में वो 1130 था और ये हमने किस साइड पे एंटर किया था? डेबिट साइड पे. तो अगर मुझे टी अकाउंट बनाने को कहा गया होता तो मैं कैसे बनाता इसका टी अकाउंट? लाइक दिस. सो 1130 का डिफरेंस था ऑन द डेबिट साइड, तो वो अमाउंट मैंने डेबिट साइड पे एंटर कर दिया एंड मैं यहाँ लिख दूंगा डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, राइट? नाउ
the two correcting entries were this. पहली करेक्टिंग एंट्री में हमने क्या किया है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था 270 से, तो मैं यहाँ पर भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दूंगा 270 और डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा सेल्स। सेकेंड एंट्री में हमने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया था 1400 से, सो इन दिस टी अकाउंट एज वेल द सस्पेंस अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट परचेजेस. So I've transferred both the correcting entries to my suspense account. Now if I total and balance my suspense account, you can see that the amounts on the debit side is equal to the amount on the credit side, right? So both the debit side total and the credit side total are equal. This means that I've done the question correctly. I have corrected the errors that were given. If there was a difference in these two amounts, इसका मतलब होता कि हमने सस्पेंस अकाउंट ठीक से नहीं बनाया है या फिर हमने एरर्स ठीक से करेक्ट नहीं किए. So if there is a suspense account involved and you correctly properly make journal entries for the correction and आपने सब कुछ ठीक किया है, तो your suspense account totals will be equal to each other. Okay. Now usually there could be differences in what the requirements are of a particular question. So you could be asked in a question just to make journal entries, T account शायद नहीं बनाना हो. Similarly you could be asked just to make this T account for suspense, आपको शायद journal entries नहीं बनानी हो. You could also be asked to make just this trial balance to find out the difference. So कुछ भी requirement हो सकती है question की, so you should know what the question requires you to do and then do it, in the right way. So इसीलिए in this video मैंने तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली हैं. How you extract a trial balance, how the trial balance, what to do if the trial balance does not balance, how to enter an amount in the suspense account, how to pass journal entries for correction, and then how to make a suspense account, right? And another requirement could be to calculate the corrected net profit, right? And वो हम already एक presentation में discuss कर चुके हैं, which was shared earlier. I will make at least 2 to 3 more videos which will be covering 2 to 3 different questions given in the past papers, so that you know how to attempt different types of questions given. All right. Till then, take good care of yourself. Thank you. Allah Hafiz.